Hi everyone. First of all, I'll quickly introduce myself. I hope my voice is audible to each one of you. I come from a town named Bareilly in UP, and I did my initial studies in at my hometown itself. Post that, I joined IIT Bombay for my engineering, wherein I and Akhilesh graduated together. So we were part of the metallurgical department there. And so in 2013 we graduated, and then I moved on to work as a political consultant. So we founded, initially we had the CAG, Citizens for Accountable Governance, eventually which developed into IPAC, Indian Political Action Committee, wherein we handle election campaigns for political leaders. So it is somewhat that we have pioneered this concept in India. This was something which was prevalent amongst the individuals, amongst the political parties in the US and the Western countries. But we were the first group to organize in a manner that we could handle such things in India as well. So it was Indian Political Action Committee. So I worked for almost 7 years there. Then, so it was previously CAG, Citizens for Accountable Governance, and then it became IPAC. Now I have moved on to a new organization, which is Showtime Consulting. I'm the associate director of this organization, and it's in the same domain. I'm handling political leaders. We are having discussions with them on a day-to-day basis as to how we could improve upon their campaign, how we could let them win in any geography. So I have worked in this domain from the last 7 to 8 years. So I have worked with political parties across the spectrum, be it BJP. So the first campaign which we did was with Mr. Modi. I personally met Mr. Modi and Amit Shah as well, our Honorable Home Minister. Then eventually I worked with Aam Aadmi Party also, with Congress also, with Janata Dal United, with some of the political parties in the southern states like the DMK, the YSRCP. So we have worked across the political spectrum and across the entire geography, and it has been a very fruitful experience. Yeah. So that's roughly about me. I guess that sums up how I have lived the past 7-8 years of my life. Prior to that, I would say one interesting period in my career or my life would be the days or the years I spent in Kota, which were those 3 years where I prepared for IIT JEE, where I went through a lot of things, a lot of stress, which you people might be going through at this point of time. And so just to sort things out for you people, I hope Akhilesh would also be helping you constantly on these aspects, apart from, say, teaching you mathematics. But yes, so I thought I would share certain things which I have in mind. With respect to primarily one thing which I thought which was helpful to me was time management and schedule management, preparing an entire timetable for myself and sticking to it. So I'll take you people through it once. So we have prepared one presentation of sorts. Then we could have it, so we could keep it interactive in a sense that you people could also post any queries, questions you people might be willing to understand, willing to know what could be done better with respect to your preparation. So take it in a manner that I would try to be as open as possible with respect to what could be done for your betterment, and be open about anything which you feel. Discuss it and we'll sort it out.
So I'll share my screen once. So to start with, this is one quotation by Paul J. Mayer, wherein he's trying to mention that productivity cannot come to you as an accident. It can't happen that all of a sudden you have become productive or you have started working in a manner which is very well planned, and it requires detailed level of understanding of what you're supposed to do. You would require tremendous amount of focus. So there are other such things as well, like either you run the day or the day runs you. So it should matter to you how do you want it to happen, whether you want that whatever I'm doing, I'll do it at my own pace in my own time, or you want to schedule, you want to plan things, how you have to do it, how you have to achieve something. So your future is somewhat created by what you do today. Okay, so eventually, say what we have done in the past, it would help us build a better future in the next 2-3 years, in the next 5 years, 10 years, 15 years down the line. So, and there's another saying which goes by, if I had 6 hours to chop down a tree, I would spend roughly around 4 hours in sharpening my axe. So, which means that you have to keep your preparations, you have to handle your preparations in a manner that those are done for the longest of time, for the longest of duration. And then when you enter the battle, there is not a lot which you have to take care of. All the things you have already prepared. Like for example, अगर आर्मी की प्रिपरेशन होती है या कोई लड़ाई होती है, if there is a battle which they have to fight, so how it goes by, they prepare for say 10-15 years. ऐसा तो है नहीं कि they are into battle on an everyday basis. उनकी प्रिपरेशन, उनका थ्रू आउट ड्यूरेशन जो है वो प्रिपरेशन में ही जा रहा होता है, और फिर वो एक दिन की लड़ाई होती है या 2 दिन की लड़ाई होती है जिसमें उनको एक्ट करना होता है एग्जैक्टली जो उन्होंने प्रिपेयर किया। अब इसका ये मतलब तो होगा नहीं कि हम अपनी प्रिपरेशन लोग में कि एक ही दिन लड़ाई होनी है, वो शायद वो आर्मी पर्सन को जाना ही ना पड़े। तो दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन वेयर यू वुड बी से सिटिंग ऑन दोस 3 to 6 hours, or say 6 hours of duration which we spend on your exam, and for that same exam you have to prepare an entire year or 2 years or even 3 years in some cases. तो वो 3 से या 6 घंटे जो भी अभी आप लोग के उसमें सेटअप में हैं, उन 6 घंटे के लिए आपको ये पूरी प्रिपरेशन करनी है जिससे कि वो 6 घंटे हमारे अच्छे गुजरे। तो you have to focus in a manner that you prepare for the longest of time, you are thoroughly doing all the hard work, and eventually when you reach there, when you are sitting for the exam, your mind is calm, composed, you know each and everything, what you have to leave also or what you have to work also, you know it entirely and you can do it. Then why do we require such a thing? Either it could happen that all the things could run in a haphazard manner, in a random manner. So it could go on, say, without proper planning, just being impromptu about whatever habits we have, and we could continue doing so, we could continue focusing on them. Like eventually, so during our college times, this is post IIT JEE, post our qualification. So you shouldn't be considering this as something which you should study or which you should learn from. So it was just the 2 hours sleep in the morning, say 6 to 8 in the morning, which we used to have. Entire night out we used to study. 6 to 8 we used to sleep, then quickly freshen up for half an hour, 1 hour. In some cases not even have breakfast, or bathing was obviously something which we skipped for almost weeks, and then eventually went to sit for the exam. So these were the kind of times which we later on in life,
during our college times, we used to enjoy. But this enjoyment came at an expense wherein, say, we prepared for JEE, we prepared with proper planning, with proper understanding of how things are to be taken. But during college times, you shouldn't be getting inspiration from these things. But we used to, say, sleep for 2-3 hours, and we used to go for exams and somehow manage to at least secure the passing marks. So not the brightest of students. I would not say. I would say for myself, I was not bright. But yeah, you people are lucky that you have a teacher like Akhilesh who is guiding you. So to be honest, if say we were people from across the country, toppers of various classes. So you consider, when you're considering a batch of 700, 800 odd people in the IIT Bombay, you're talking about the cream of the entire country coming to that particular college. Then amongst them also, so Akhilesh was one person whom you could rely on when it comes to at least mathematics. So even some of the tricky questions, like we used to have our quizzes, we used to have our midsems. So some of the tricky questions, even those toppers amongst our class weren't able to solve with respect to mathematics, which Akhilesh was prominent in handling. So he was our go-to guy when it comes to teaching us mathematics, at least, even during our college days. So IIT JEE mathematics is far say different from what college level mathematics is. If you would come across some of the differential equations, you would say that I would take an entire day for solving them. So such was his grip on mathematics, and I'm sure you people would try to learn as much as you can from him. And like I mentioned, you people are lucky that he's closely working with you, closely teaching you, and trying to clear your doubts, and trying to build up concepts which eventually you'll have long lasting, and which will help you build your career as well. So yeah, by coming back to the PPT, so why do we require such a planning? So we have to keep in mind that it increases the efficiency. So जो आपकी पूरी पढ़ाई का ईटा है ना, वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आप इसको efficiently break down करोगे your entire timetable. If you have a clear planning in mind, तो you will definitely feel that जो अभी हर चीज फैली हुई है, everything is in a manner haphazard or moving from one place to another, that would get structured. It provides a roadmap. आपको एक पूरा ये पाथ पता चल जाएगा कि if I am doing first this, then I have to focus second on this, thirdly I have to focus on this aspect. तो वो पूरा एक ये पता चल जाएगा कि हाँ, अगर इस पाथ से मैं चला जाऊं तो अगले 6 to 8 months या फिर जब भी मेरा एग्जाम है, अगर 1 साल बाद है, 1.5 साल बाद है, तो उसको मैं बेटर प्लान कैसे कर सकता हूँ, फोकसिंग ऑन से माय वीक एरियाज फर्स्ट, कंसोलिडेटिंग माय स्ट्रॉन्ग एरियाज. तो उस तरीके से आप अपने रोड मैप बना सकते हैं. सिमिलरली इट हेल्प्स यू प्रायोरिटाइज. सो अगर आपको ये क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से मैं पहले किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दूं, पहले मैथमेटिक्स मुझे करना है या फिर पहले मुझे फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, इनसाइड द सब्जेक्ट ऑल्सो विच पर्टिकुलर टॉपिक डू यू हैव टू पिक अप फर्स्ट. तो वो सारी चीज़ें भी आपको प्रायोरिटी में पता चल जाएंगी कि हाँ, मुझे इनऑर्गेनिक पहले पढ़ना है, या फिर अगर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स मुझे समझ में आ गया है तो अब मैं सर्कल्स को के भी कुछ क्वेश्चंस कर पाऊंगा, या फिर स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला, हाइपरबोला, ये चीज़ें इजीली पकड़ पाऊंगा. तो वो किस चीज़ को आपको प्रायोरिटाइज करना है amongst various subjects also, and amongst the subjects various topics also, it would help you in a manner that which could transform your life. Then comes developing a routine. So आप एक चीज
for your entire duration, keep in mind the person who would be dedicated towards their studies, who would be constantly doing the hard work with some bit of smart work, with some bit of understanding, would have a better chance of qualification in the exam. तो अगर आप अपना रूटीन बना के ये फिक्स कर लो कि हाँ इस चीज से मुझे कोई नहीं हटा सकता, I will definitely follow at least these many things, so you'll sail through. It won't be a concern for you. You'll easily pass through the exam. You'll have good marks in each of your topics, each of your subjects, and it would definitely be helpful for you going forward. Then comes, how do we design? So how do we plan a schedule? How do we plan a timetable? कैसे मुझे समझ में आए, अभी मेरी सारी चीज़ें अगर स्प्रेड हैं, मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच ये पढ़ लेता हूँ, या फिर जो मन में आ रहा है या जो उस दिन चल रहा है वो मैं पढ़ लेता हूँ, या फिर मैक्सिमम टाइम गोज इनटू माय मोबाइल वॉचिंग some TV series or looking at memes or listening to just music, या फिर फैमिली से बात करने में निकल जा रहा है, या फिर फ्रेंड्स से बात करने में टाइम निकल रहा है. तो हाउ डू यू स्ट्रक्चर द एंटायर थिंग when it comes to the exhaustive set of activities which you have versus the time? तो उसका बहुत ही सिंपल सेटअप है. जितनी चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं which you have to do, वो एक जगह लिस्ट डाउन करनी है, which you necessarily want to do. मैंने 5 ऐसी बकेट्स बनाई हैं जिसके अंदर मोर और लेस वी कुड क्लासिफाई एवरीथिंग. स्लीप तो थ्रू आउट आप लोग को पता ही कि वो रिक्वायर्ड है. एक चीज जो की जा सकती है which you should keep in mind is during your exam time, जो भी आपका एग्जाम का ड्यूरेशन होगा, which could be say 9 to 12 in the morning and 2 to 5 in the evening. So these were the 2 timings which we used to have during our time. अगर आपका भी ये ड्यूरेशन है तो इस ड्यूरेशन के बीच में try not to sleep, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक वैसी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए कि इस ड्यूरेशन में मुझे स्लीप नहीं आएगी या फिर कभी भी मैं सो नहीं सकता, क्योंकि आपका माइंड उतना एक्टिव रहेगा उस ड्यूरेशन. तो 5 major buckets where we could classify preparing our when we are sitting for preparing our timetable is that sleep is one important aspect. Study obviously is an important thing which is why we are having this discussion all together. Play or say exercise is also something which you should keep in mind, that this would help you. So these are things which people stop doing, say, during their preparations. The toppers or some of the individuals who think that no, I don't require any bit of exercise, I'm fine anyway, but it helps release good amount of hormones which would eventually help you in your studies. So focus on your exercise and your and such playful activities as well. Then there is leisure time, wherein say you're spending it for talking with your friends, talking with family, or just doing nothing. Try to utilize this time for motivating yourself. तो इस duration को, मतलब one important factor which I felt during my 3 years of study, and eventually I studied for the last year only, which is the repeating year. But उसमें एक factor which I feel helped me a lot was I used to constantly motivate myself for at least half an hour on daily basis, either in the evening or say late at night post my dinner. But वो half an hour की एक walk, I used to stay at a terrace room, तो वो एकदम टॉप पे था, तो वहाँ पे वॉक के लिए एरिया भी था मेरे पास. तो उस ड्यूरेशन में अपने आप से बात करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आपको अपने आप को समझाना होगा कि हाँ, दीज आर माई स्ट्रॉन्ग एरियाज. आज ये एक चीज अच्छी हुई जिसके चलते मुझे एक ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा, या फिर ये पता चल जाएगा कि अगर मैं इस टॉपिक को इतने ड्यूरेशन में कर दूंगा तो आगे के ये 2 टॉपिक्स और इजी हो जाएंगे. तो काफी चीजें वो कनेक्टेड होती हैं. तो आपको अपने आप को कॉन्स्टेंटली उस ड्यूरेशन में एटलीस्ट वो हाफ एन आवर
और 15 to 20 minutes का एक walk post your dinner, or it could be after in the evening time as well, say 6 to 6:30. So during sunset, so that time could be utilized for motivating yourself. Similarly, like we have mentioned, another important bucket is eat. So you have to make sure that proper nutrition you are having, and this yeah sorry so you have to make sure that you are having proper nutrition, you are having a proper diet which is helping you, and things which are rich in protein, things which are not say inducing a lot of sleep in you. एक एक थॉट, एक ये श्लोक या फिर उसको जो भी बोल लीजिए, वो हम लोग के यहाँ घर पे भी सुनाया जाता था, आप लोग ने शायद सुना होगा, काक चेष्टा बकोधानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी नाम पंच लक्षणा। तो इसको इस तरीके से समझिए कि कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान, काक चेष्टा बकोधानम श्वान निद्रा, कुत्ते जैसी नींद, और अल्पहारी मतलब कम खाने वाला, और गृह त्यागी घर को त्यागने वाला विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। तो अगर आप में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो यू कुड बिकम अ बेटर स्टूडेंट। सो not sure whether it is applicable in today's times, but still like Shwan Nidra is something which I developed during that time around. So I used to have a very sound sleep, a very deep sleep during my earlier days, but during my preparation days somehow it happened that I used to have a very light sleep only. So moment someone says something, I would wake up immediately and I would start working or start focusing on whatever they are talking about. So ये 5 चीजें हैं which where we are bucketing ourselves with respect to so आपको बस ये करना है, you have to list down all possible things which you are supposed to do, which you are supposed to do in a day, and सामने टाइम है, इस पूरे को आपको मैच द कॉलम खेलना है कि हाँ भाई अब इस वाले ड्यूरेशन में मैं स्टडी डालूंगा, प्ले जो है वो इवनिंग वाले टाइम में एक डाल दिया और एक अर्ली मॉर्निंग में चाहे डाल दिया, और याद करने की चीज जो है वो सुबह उठते ही सबसे पहले चीज डाल दी कि हाँ इनऑर्गेनिक की जितनी चीजें पढ़नी है या ऑर्गेनिक का कुछ पढ़ना है तो वो एकदम अर्ली मॉर्निंग को डाल दिया। ईट वाले टाइम तो आपके फिक्स होंगे ही कि एक ब्रेकफास्ट, लंच और इवनिंग स्नैक्स देन डिनर, तो उस तरीके से यू कुड प्लान इट। तो ये एक मैच द कॉलम आपको खेलना होगा। दीज आर द ब्रॉड बकेट्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड। You could have further classifications to each one of those buckets. You could have activities listed across those buckets and then utilize it. एक timetable which could be considered as a sample timetable. I'm not saying go buy it or make it your guiding principle, but you could take some inspiration from it. You have to customize it based on whether you go to a school or you follow a particular curriculum school wise as well, or you are only taking coaching classes. So you have to customize it based on what your requirements are, but this is roughly something which can be followed, which can be utilized, like I mentioned, except for this 2 p.m. to 3 p.m. where it is mentioned that take a small nap. I would suggest don't take that small nap because the productivity would be impacted if you would be sitting in the same duration during your exam time as well. So in fact जब मेरा एग्जाम था उससे 2 हफ्ते पहले मेरा सेटिंग जो थी एकदम एग्जैक्टली जैसा एग्जाम देना होता है, एग्जैक्टली वैसा डे मैं फॉलो करना 2 हफ्ते पहले से। तो आई वाज स्टार्टिंग विथ से 8:30, देन 8:30 to 9 आई यूज्ड टू सेटल डाउन। बस इसमें भी एक चीज मैं बता दूं, व्हाटएवर टाइम यू सेट फॉर योरसेल्फ, make sure that you are starting 2 minutes before that. Otherwise it happens कि यहाँ 3 p.m. का 3:05 भी हो गया, अब
3:30 स्टार्ट करेंगे या 4 स्टार्ट करेंगे। वो राउंड नंबर नहीं चाहिए। तो राउंड नंबर लाना है तो उससे पहले से ही यू हैव टू सिट डाउन। अगर 3 PM यू हैव टू स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट बाय 2:58, सिट डाउन बाय 2:58 so that you start by 3. तो हाँ, so I was telling, so 2 weeks in advance I used to sit in the same style how I have to how I have to give the exam. All the settings were made for me available in a manner that I'm giving the exam in the same format which I have to give for JEE. Even जो प्रैक्टिस पेपर्स थे वो उसी तरीके से बिल्ड थे कि हाँ अभी ये 3 आवर्स का, ये आपका 3 आवर बाद ही खुलेगा, मतलब 9 to 12 एक खुलता था, देन 2 to 5. तो you have to prepare your body also in a manner that it is functional during that duration when you have to give the exam. So that's why I'm saying ये 2 PM to 3 PM जो small nap वाला है, this you should skip. ड्यूरिंग एग्जाम टाइम वाले में आपका माइंड फुली एक्टिव होना चाहिए, कोई नैप नहीं उस टाइम पे। तो स्टिल यू कुड see to it if whatever changes, whatever customizations you feel you would require, so that those you could make. And keep in mind कि जो भी डिस्कशन हम कर लें, जितनी भी चीजें बता लें, अगर आपके अंदर IITian होगा तो वो खुद से निकल आएगा। उसको फिर वो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती कि ऐसा कर लो, वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जिसके अंदर IITian होता है ना, वो खुद से बाहर आ जाता है कि भाई मैं ऐसे ही करूंगा और मैं हैंडल कर लूंगा जैसे जैसे मैं करता आ रहा हूं। तो कीप दोस थिंग्स इन माइंड दैट ये प्रायोरिटी बनाना, पूरा टाइम टेबल बनाना, वो अपने आप ही एक मैक्सिमम लोग जो हैं वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो एक हर्ड मेंटालिटी है, बट इट इज अ नेसेसरी थिंग विच वी शुड बी डूइंग। द थिंग विच आई वाज मेंशनिंग कि सिर्फ टाइम टेबल बना लेना ही सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं बना के बैठ गया एक जगह, वो चिपका दिया है अपने रूम में और अब बस हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, अब बस इसको देखता रहूंगा और निपट जाएगा मेरा। तो sticking to it, trying to think about the timetable now, trying to manage your day in a manner that I am constantly following my timetable. जितने भी आप बड़े लोग या जितने भी जो लोग भी फेमस पर्सनालिटीज हैं या एट पोजीशन ऑफ पावर हैं या फिर दे हैव अर्नड गुड मनी और कुछ भी अचीव किया है और दे आर रनिंग बिजनेसेस, you would see they would have certain guiding principles, certain rules. So discipline of following your timetable is one important rule which you have to make for yourself. अगर आपने इस चीज को पूरा बनाया है तो आपको उस पर स्टिक करना होगा। आपको लोगों को मना करना होगा कि नहीं, इस ड्यूरेशन में मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे पढ़ने का टाइम है। अगर 3:30 to 5 कोई कह रहा है भाई एक कॉल करते हैं जिसमें पबजी खेल लेंगे या तो आधे घंटे और फिर उसके बाद कुछ बातें कर लेंगे, जो वो वहां हो के आया, घूम के आया, उससे बात करेंगे, तो साफ मना कर दीजिए, नहीं मेरा वो वाला टाइम जो है वो 5:30 से स्टार्ट होता है, उस टाइम आओ। 3:30 to 5 वाला मेरा पढ़ाई का टाइम है। तो आप उन चीजों को सेट वैसे कर लीजिए। फोन भी अगर देखना है या आप मतलब you people, I would say you people are very unlucky to be in the times when WhatsApp and memes and so many TV series are there. We were relatively lucky that इतनी सारी चीजें, इतने distractions नहीं थे। तो still how you could better build upon it is that dedicate a time कि हाँ 5 to 5:30 या फिर 5 to entire 6 मैं WhatsApp पे रहूंगा, मैं उस टाइम मीम्स देखूंगा, मैं उस टाइम टीवी सीरीज देखूंगा, बट लेकिन उसके अलावा फिर बिल्कुल नहीं करूंगा। मॉर्निंग में हाफ एन आवर अपने पेरेंट्स से बात करना है या फिर जब भी जैसे भी बात करनी जिससे भी, तो वो सब करूंगा, बट उसके अलावा नहीं करूंगा। फॉर मी इट वाज फिक्स्ड, मैं ट्यूसडे एंड सैटरडे अपने पेरेंट्स से बात करता था, उसके अलावा वो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं था मेरे पास। कि मतलब यू पीपल माइट हैव द लिबर्टी ऑफ स्टेइंग विद योर पेरेंट्स और say talking to them on a daily basis, but मेरा communication सिर्फ ट्यूसडे को 15 to 20 मिनट्स होता था एंड सैटरडे को 15 to 20 मिनट्स एक कॉल। मेरे पास फोन नहीं था उस सिचुएशन में,
इवन ड्यूरिंग कॉलेज टाइम्स फर्स्ट ईयर तक मेरे पास फोन नहीं था. तो दैट वाज वन लिबर्टी विच आई हैड, कि वो एंटायर 3 years ड्यूरेशन, स्पेशली द लास्ट ईयर, वो फोन ना होना ही बहुत फायदे का हो जाता है. एक डिवाइस ही हट गई है आपके पास से. आप लोग के लिए ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल comes on your devices, a lot of things which you would require for studies would come on your phone itself. But for us it was primarily those books and the daily practice problems which we used to do. तो वो हेल्पफुल हो गया था. तो फोन वाली चीज अगर जितना आप रिड्यूस कर सकते हो अपना फोन स्क्रीन टाइम, दैट डेफिनेटली वुड इम्पैक्ट अ लॉट. जितना ज्यादा आपका बुक टाइम इंक्रीज होगा और स्क्रीन टाइम कम होगा, स्क्रीन टाइम आप डेली का 2-3 आवर्स कर लो, 2 to 3 आवर्स. और उसमें भी प्राइमरली आपका मतलब स्क्रीन टाइम इन द सेंस व्हाट्सएप और ये वाला जो ड्यूरेशन है लेजर टाइम, वो सब क्लब होके 1 घंटे का हो जाए. उसको जितना ज्यादा आप रिड्यूस करते जाओगे, इधर प्रोडक्टिविटी वाला इंक्रीज हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू, ये 1 year और 2 year और 6 to 8 months जो भी हैं, ये लौट के नहीं आएंगे. तो और अभी मेरे पास इनफाइनाइट टाइम है. अभी आई एम हैविंग डिस्कशंस विद यू, आई एम सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोमेंट दिस आपने आईआईटी का एग्जाम निकाल लिया, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर लिए, यू वुड हैव ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ टाइम. मतलब हम लोग अगर आईआईटी की बात करें तो हम लोग के पास ऐसा टाइम होता था कि 3-4 मूवीज देख ली, उसके बाद सो गए, कि 4-5 घंटे सो गए, सो के उठे, फिर अब क्या करें, चलो फिर से कोई टीवी सीरीज लगा लेते हैं. तो यू वुड हैव इनफ टाइम इन योर कॉलेज टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स. आई एम टेलिंग यू, अभी का ये जो ड्यूरेशन है, ये अगले 2-3 साल या 1 साल व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर, उसमें सही फोकस अगर रख लो, देन टीवी सीरीज, मूवीज. मैंने किया क्या है, मैंने प्राइमरली कॉलेज में मूवीज और टीवी सीरीज निपटाई है बैठ के, कि हाँ ये पूरा जो बचा हुआ था पार्ट, वो अब मैं खत्म कर लूं. तो वहां पे आपके पास सारी स्किल्स लर्न करने के लिए या इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम होगा. तो ट्राई टू फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट्स, प्लस फाइंड आउट योर वीक एरियाज, कि हाँ ये एक टॉपिक है या ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत वीक हूँ. ऐसा मुझे फील होता था 11th में फॉर मैथ्स. तो ऐसा हुआ कि मुझे ये लगता था कि यार मैथमेटिक्स में मुझसे नहीं हो पाएगा, ये क्या हो रहा है, कैसे कैसे चीजें चेंज हो रही हैं, कौन सा फॉर्मूला लग जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है. 12th में एक मेरे टीचर थे संकर्षण त्रिपाठी. तो सिमिलरली आई एम सेइंग यू पीपल आर आल्सो लकी दैट यू हैव अखिलेश. So my teacher was Sankarshan Tripathi, who started teaching me in a manner that I started understanding things. फिर एक वो इंस्पिरेशन भी उनके लिए डेवलप हुआ कि हाँ ही इज समवॉट ऑफ अ ग्रेट टीचर, ही टीचेस वेल, प्लस वो साथ में हंसी मजाक और ये सब कराते रहते थे. फिर मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट इतना डेवलप हो गया कि अब मुझे लगा मुझे मैथ्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. फिर 13th में जो मतलब रिपीटर ईयर था, उसमें मैथ्स पे मेरा इतना फोकस हो गया था कि अब बस कोई भी क्वेश्चन लाओ, कोई भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाओ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर कैसे कैसे ऐसा हो सकता है कि मैं उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहा हूँ. इवेंचुअली ड्यूरिंग जेई ऑल्सो आई एंडेड अप स्कोरिंग हाईएस्ट इन मैथमेटिक्स. तो वो 11th से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया टिल दिस ईयर, इट वाज बिकॉज आई स्टार्ट टेकिंग अ डीपर इंटरेस्ट इनटू व्हाट आई कुड डू. मुझे ये फील हुआ कि जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट जो इसमें हम लोग बोलते हैं फॉर द जेई, दैट इज हाईली क्रेडिटेड टू मैथमेटिक्स. ऑल्दो एट द सेम टाइम आई वुड से गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. ऐसा मत करना कि नहीं अब मैं मैथ्स ही करूंगा, मैथ्स और फिजिक्स मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, केमिस्ट्री तो बाहर में जाए, केमिस्ट्री में मुझे कम से कम नंबर लाने हैं. ये थिंकिंग भी नहीं रखनी है. ये थिंकिंग क्यों नहीं रखनी है, मैं उस पर भी आऊंगा. तो कीप इन माइंड, मेरे लिए जो नेगेटिव पॉइंट था कि मेरी केमिस्ट्री फिर वीकेस्ट हो गई. आई स्कोर्ड लोएस्ट इन केमिस्ट्री, और अगर अच्छा स्कोर करता तो शायद बेटर रैंक मिल जाती. खैर ऑल्दो वो सब चीजें चलती रहती. मुझे कॉलेज जो चाहिए था वो मिल गया आईआईटी बॉम्बे. बट स्टिल
why you should be having equal focus towards the subjects, कीपिंग इन माइंड आपको वीक वाले तो तीनों ही सब्जेक्ट्स में, वीक टॉपिक्स जो तीनों ही सब्जेक्ट्स में वो तो कवर करना ही है। इक्वल क्यों करना है उसका मैं बता देता हूँ। 97 में 1997 में IIT JEE का पेपर लीक हुआ, तो उसके बारे में आप पढ़िएगा भी। तो ऐसा हुआ कि लखनऊ की किसी एक कोचिंग ने वो पेपर लीक किया। अब IITs के लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि भाई हमारा पेपर लीक हो गया। तो सबसे पहला काम तो उन्होंने किया कि हाँ भाई इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हैं, उस टाइम ऐसा नहीं कि इंटरनेट के थ्रू लीक हुआ या किसी वैसे उसके थ्रू लीक हुआ, क्योंकि 97 में इतना ज्यादा इंटरनेट एक्टिविटी भी नहीं थी। तो अब हुआ ये कि इन लोग को ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या किया जाए। तो इन लोग ने कहा कि चलो ठीक है, पेपर लीक हो गया है, बट स्टिल व्हाट वी कुड डू इज वी कुड कैंसिल द एग्जामिनेशन एंड 2 मंथ्स के बाद हम फिर से करेंगे एग्जाम, हम रिकंडक्ट करेंगे। तो सबने कहा, स्टूडेंट ने कहा कि ठीक है, स्टूडेंट हैड टू एग्री कि भाई जिसको IIT जाना है वो ऐसा थोड़ी कि हाँ नहीं हम, उस टाइम रुड़की का सेपरेट एग्जाम होता था। उस टाइम इनफैक्ट जो NITs भी थी वो भी कोई एक कॉमन एग्जाम नहीं हुआ था, उन सबका रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे और स्टेट वाइड एग्जाम्स होते थे, वो चलते थे। तो अब ये डिस्कशन हुआ कि भाई IIT का एग्जाम दोबारा होगा, और ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अभी तक हुआ है कि 97, इफ यू रीड अबाउट इट, इवन आपके जो प्रैक्टिस पेपर्स भी आते होंगे उसमें 97 के एक होता होगा 97 नॉर्मल और एक होता होगा 97 री एग्जाम। जो भी आप क्वेश्चन पेपर लास्ट 30 इयर्स के अगर देखोगे तो उसमें वैसे आता होगा। 97 का जब री एग्जाम हुआ था तो इट इज क्लेम्ड, आई एम नॉट सर्टेन वेदर इट इज ट्रू और नॉट, मैथमेटिक्स के पेपर की जो कट ऑफ थी दैट वाज -1। तो जिस पर्सन का -1 मार्क्स भी आए हैं और उसने केमिस्ट्री और फिजिक्स में अच्छा किया होगा, वो भी क्वालिफाई हुआ था। 0 भी आए हो मैथ्स में, वो सब्जेक्टिव पेपर में वो लोग नेगेटिव मार्किंग लग गए थे फॉर मैथमेटिक्स। तो IITs एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने ईगो पे लिया था, दे ट्राइड चैलेंजिंग यू कि आओ अब कर लो, अब तुम पेपर लीक भी कर लो और फिर भी करके देख लेते हैं कि कितना कर पाओगे। तो that's why I'm saying you have to give equal focus, equal attention towards all your subjects, because if such a thing happens, जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में 2022 वाले एग्जाम में 2023 वाले एग्जाम में मैथ्स का पेपर टफेस्ट आ गया, तो जो टॉपर होगा और जो आप होंगे इनमें मार्क्स का डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा, इनमें 10-15 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। अगर मैथ्स का पेपर रिलेटिवली थोड़ा टफ हो तो ऐसा होगा कि टॉपर का डिफरेंस काफी हो जाएगा, 50-60 मार्क्स का। आपका एक सर्टेन मार्क्स है, उसके 50-60 मार्क्स है। लेकिन अगर टफेस्ट एग्जाम दे दिया उन्होंने मैथ्स का, तो सबके मोर और लेस सेम एवरेज के अराउंड ही मार्क्स आ जाएंगे। तब ये मैटर करेगा कि हु स्कोर्ड बेटर इन केमिस्ट्री, हु स्कोर्ड बेटर इन फिजिक्स। तो इसलिए जस्ट टू बी प्रिपेयर्ड ऑफ दिस सिचुएशन यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको हर सब्जेक्ट का इक्वल फोकस देना होगा। ऐसा नहीं करना है कि हाँ भाई अब बस मैथ्स, इंटेलिजेंस का मतलब मैथ्स है वैसा आप अपने दिमाग में वैसा बना सकते हो, बट दैट इज नॉट द केस। यू वुड बी रिवॉर्डेड इफ यू स्टडी केमिस्ट्री वेल, यू वुड बी रिवॉर्डेड इक्वली इफ यू स्टडी फिजिक्स वेल। फिजिक्स में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एरोडो के 4 क्वेश्चन लगा के लोग कहते हैं कि हाँ मैंने अब पूरा जीत लिया है। तो दोज थिंग्स वुड कीप ऑन हैपनिंग, but keep your focus intact that you have to study, give respect at least to these 3 subjects equally. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग purely on the basis of chemistry they were able to make a good impact, they were able to get a good rank scoring lesser number of marks in math. तो वेटेज आप अपने हिसाब से देखिए, कोई चीज अभी अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कोई एक टॉपिक पकड़ लीजिए कि हाँ मेरे केमिस्ट्री में ये 4 चीजें वीक हैं, मेरी फिजिक्स में ये 5 चीजें वीक हैं, मेरी मैथमेटिक्स में ये 7-8 चीजें वीक हैं, मैं पहले इनको खत्म कर दूंगा
और इन पे मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि अब इसका कोई भी क्वेश्चन मुझे ले आओ। देखो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट पैटर्न। सर्कल्स है, सर्कल्स के 10 तरीके के ही क्वेश्चन है, मान लो कि हाँ इन 10 तरीकों के ही क्वेश्चन आते हैं इसमें। या फिर ये है उसको रोटेशनल मैकेनिक्स बोलते थे ना, रोटेशन का टॉपिक होता था जो मैकेनिक्स में सबसे टफेस्ट टुवर्ड्स द एंड पहुंचते पहुंचते हो जाता था, रोटेशनल मैकेनिक्स। तो उसमें सेट 8 to 10 क्वेश्चन ही हैं कि इस टाइप के आ सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें जोड़ के आ जाएंगी कि हाँ इसका भी एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है, एसएचएन का भी उसमें डाल दिया है, वो मिक्स करके तो आप कर ही लेंगे। बट एटलीस्ट वो जितने पैटर्न्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो आपको सारे आने चाहिए। जो मैं अखिलेश की बात कर रहा था ना कि हमारे क्लास में जो टॉपर्स भी होते थे वो नहीं कर पाते थे। his special capability which I felt was he had a thinking, he had a intuitive mind जो पैटर्न भी पकड़ लेता था, प्लस नए तरीके से सोच लेता था कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो चीज बहुत कम लोगों के पास होती थी। सेट स्कूल सेट प्रिंसिपल से तो सब चल लेते हैं कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा और सॉल्व हो जाएगा, या इसमें ये तरीका लगा लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। जो एक ही प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नंबर से भी करना और स्ट्रेट लाइन से भी उसको समझ लेना और उसको वेक्टर से भी पकड़ लेना, वो स्पेशलिटी है। या सर्कल की थ्योरी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में लगा लेना, वो स्पेशलिटी है। तो वो आपको सोचनी होगी कि मैं वो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें ऐड करूं। तो उस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। काफी डिटेल्ड डिस्कशन हो गया। सिमिलरली नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड कि जैसे फेस्टिवल्स आए, वी हैव दिवाली, या आपका खुद का बर्थडे होगा, या फिर किसी वीकेंड कहीं बाहर जाना होगा, फैमिली फंक्शन में जाना कंपलसरी होगा। तो हाउ यू आर से कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर शेड्यूल, हाउ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर टाइम टेबल, क्या क्या चीजें आप अफोर्ड कर सकते हो, क्या चीजें आपको अलाउड हैं। तो आप अगर आपको ये समझ में आ गया कि अगले 3 दिन बहुत बिजी होने वाले हैं, अगले 3 दिन मुझे एक फैमिली फंक्शन में जाना है, एक रिलेटिव है उनकी शादी है, तो आपको अपने आप को स्ट्रक्चर करना होगा इन अ मैनर कि इन 3 दिन भी जो मेरे शेड्यूल के 10 आइटम्स हैं उनमें से 4 आइटम्स तो मुझे फिर भी कंप्लीट करने हैं, चाहे वो शादी हो चाहे वो शादी ना हो। ठीक है, तो आपको अपना शेड्यूल में कितना आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो वो आप देखिए। सिमिलरली जैसे फेस्टिवल्स हुए, अभी दिवाली टाइम है, तो कोई कह रहा है कि नहीं दिवाली में चल के पटाखे फोड़ते हैं या घूम के आते हैं या कुछ करते हैं। आप अपने शेड्यूल को कितना कितना परसेंट उसका कंप्लीट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको ट्वीक कर लेना है कि हाँ अगले 3 डेज 4 डेज, जिससे आपको खुद में गिल्ट फीलिंग ना हो कि नहीं मैं अपना शेड्यूल पूरा नहीं फॉलो कर पा। उन 3-4 डेज के लिए आप उसको थोड़ा ट्रिम डाउन करें कि हाँ अभी आई हैव टू स्पेंड सम मोर टाइम विद माय फैमिली, तो इन 3 डेज के लिए मेरे शेड्यूल में ये चीजें चेंज हो जाएंगी। जो वो 5 to 6 वाला जो ड्यूरेशन था उसकी जगह शायद 5 to 7 हो जाएगा। या फिर जो फ्रेंड्स आ रहे हैं उनसे एक बार मिलना है, जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करिए अभी। बट लेकिन कुछ चीजें अनअवॉइडेबल रहेंगी, कुछ फैमिली इमरजेंसीज भी हो सकती हैं, तो उस टाइम आपका टाइम टेबल कितना लीस्ट कॉम्प्रोमाइज हो सके उस चीज को आपको देखना है। एक ये क्वेश्चन आया, कैन वी डेडिकेट दिस लेजर टाइम टू आवर हॉबीज लाइक म्यूजिक दैट आल्सो कनेक्ट्स वन विद वनसेल्फ? एब्सोल्युटली यू शुड बी डूइंग इट। अगर वो कर रहे हो तो डेफिनेटली इट वुड हेल्प यू मोर। I can't, I mean, I would be so proud, I would be so happy if someone is dedicating their duration of leisure time to music, because वो एक टाइम वैसा रहेगा जब आपको actually it would help you. Similarly, there are kinds of there were kinds of songs which I used to listen during my preparation days, which were motivating for me. मैं उनकी प्लेलिस्ट भी आप लोग से शेयर कर सकता हूँ। बट इफ यू हैव योर ओन सॉन्ग्स कि हाँ और यू प्ले सम सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार या कुछ, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट। वो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट। देखिए अगर आप कोई भी स्किल पैरेलली जोड़ेंगे, जैसे अगर जिस भी पर्सन को मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हैं,
तो देयर माइंड इज फार मोर डेवलप्ड देन अ रेगुलर इंडिविजुअल। तो किसी भी स्किल सेट में अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो आपका माइंड उस डायरेक्शन में और इम्प्रूव हो जाएगा और बढ़ने लगेगा। तो म्यूजिक इज वन सच डोमेन, वन सच जॉनरा वेयर यू, इफ यू स्टार्ट स्टडीइंग इट, इफ यू स्टार्ट लिसनिंग टू थिंग्स, इफ यू स्टार्ट ग्रैबिंग दैट, हाँ ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे बज रहा है तो ये ह्यूमन माइंड को अच्छा लग सकता है या हमारे ईयर्स को प्लीजिंग लग सकता है। तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग व्हिच वुड हेल्प यू इन योर स्टडीज आल्सो, इन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स आल्सो। So next question. सर Regular. अभी आदिश ने एक सेकंड, जो जो क्वेश्चन आए एक बार उनको मैं कंप्लीट करूं। तो शुड वी फोकस ऑन आवर वीकनेस फर्स्ट देन स्ट्रेंथ? यू कुड, सो इफ यू हैव टाइम, अगर मेरे पास एक महीना होगा देन आई वुड कंसोलिडेट ऑन माय स्ट्रेंथ। if I would be having plenty of time, say 6 to 8 months, then I would cover my weaknesses first, because मेरे पास टाइम है, मैं अपनी weaknesses खत्म करके उनको भी स्ट्रेंथ बना सकता हूँ और पूरा स्ट्रेंथ के साथ ही निकल सकता हूँ। वर्सेस अगर मेरे पास ड्यूरेशन कम होगा, मतलब अगर मेरे पास 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स या 1 मंथ ही बचा है, तो आई वुड ओनली फोकस ऑन माई स्ट्रेंथ। सो इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन द ड्यूरेशन विच यू हैव। तो यू कुड फोकस ऑन योर वीकनेसेस फर्स्ट, बिकॉज स्ट्रेंथ तो अब स्ट्रेंथ बनी गई है, अब वो स्ट्रेंथ से निकलने नहीं देना है। अब एक बार जो स्ट्रेंथ हो गई ना, अगर ये समझ में आ गया कि हाँ मुझे मैकेनिक्स में कोई नहीं हरा सकता, या कोई भी क्वेश्चन ले आओ मैं उसका सॉल्व कर लूंगा, तो वो अब स्ट्रेंथ हो गई, अब उसको नहीं जाने देना। उसका कॉन्स्टेंटली बस दिन के कुछ क्वेश्चंस या एक रेगुलर एक्सरसाइज जो आती रहती हैं वो लगाते गए, और उनको अब खत्म नहीं होने देना, नई स्ट्रेंथ और जोड़ते जाना है। आदिश हजार सर, अभी दिवाली में कुछ 5 to 6 डेज बिल्कुल वेस्ट की तरह हो गए हैं, एंड अभी 25 डेज में बोर्ड्स हैं ओलंपियाड, तो अब वो कवर कैसे करें? टफ चीज है। एक सेइंग होती थी कि इट्स नाइदर टू लेट नॉट टू अर्ली। तो अभी बहुत देर भी नहीं हुई है और बहुत जल्दी भी नहीं है। दिस इज द एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी टाइम व्हेन यू कुड स्टार्ट थिंग्स। और इस गिल्ट में मत रहो कि बहुत कुछ गलत हो गया, मुझे और अच्छे से तैयारी करनी थी, मेरी प्रिपरेशन परफेक्ट नहीं जा रही है, या मैंने जितना अभी तक टाइम वेस्ट कर दिया है उससे सब खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं, आज से शुरू कर लो, आज से चीजें चेंज कर लो और सब सही हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, फोकस ऑन वट एवर योर वीक एरियाज आर। you are slightly specific about things also कि हाँ 5-6 days बिल्कुल कोई बात नहीं, वेस्ट हुए कोई बात नहीं, और 25 डेज में बोर्ड्स है। बोर्ड्स तो बहुत सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स है ना, वो उसको आइडियली यू पीपल शुड प्रायोरिटाइज, बिकॉज उसकी परसेंटेज वुड मैटर। But in our times, I would be honest with you people, I scored 68% in my 12th board. You could imagine 68%. I mean, in my entire batch, or that too in CBSE, not a state board. So that would be somewhere amongst the lowest of my entire batch. But still, I managed to get into IIT. So for me, my target was clear that I have to be into IIT, नथिंग लेस। मतलब मैं ये जानता था कि मेरे अंदर आईआईटीएन है, मुझे वो फील आ गई। अब मैं अपने अंदर के आईआईटीएन को वो ना पहुंचा पाऊँ, वहां ना पहुंचा पाऊँ, वो मेरे लिए गलत हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि भाई बोर्ड्स वगैरह जो भी है, बट यू शुड फोकस, यू शुड डिवोट योर टाइम इन अ मैनर दैट say 2-3 hours of your duration you are giving for board, and the remaining time to your this IIT preparation। 25 डेज बहुत ज्यादा टाइम होता है। 25 डेज में मतलब एक पूरा सब्जेक्ट निपटा सकते हैं आप। मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप अगर 2-3 मेजर टॉपिक्स हो फिजिक्स के, वो पूरे 25 डेज में निपटाए जा सकते हैं। या फिर ये जो पूरा होता है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये पूरी 25 डेज में निपटाई जा सकती है। तो 25 डेज छोटा टाइम नहीं है, काफी बड़ा टाइम है। अगर आप उस इतने 25 डेज को भी स्ट्रक्चर कर लो कि हाँ विद इन 1 वीक मैं ये खत्म कर दूंगा, विद इन नेक्स्ट वीक, एंड टैंजिबल टारगेट्स, ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फ्लाइंग टारगेट्स दे दिए जो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे। मैं बता रहा हूँ, जस्ट गिव योरसेल्फ सेट स्टेप्स। आपके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी,
उस प्रॉब्लम को आपको हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देना, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को तोड़ के उनके लिए अपने स्टेप्स बनाने हैं कि हाँ इस छोटी प्रॉब्लम को मैं ऐसे कर लूंगा, इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे कर लूंगा। जब आपने अपनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे में तोड़ लिया, आपका काम वहां खत्म हो गया, बहुत इजी हो गया। वुड यू सजेस्ट इज बेटर लॉन्ग आवर सेशंस और शॉर्ट सेशंस विद ब्रेक? इसमें दो चीजें हैं। व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग योर टेस्ट पेपर, तो उसमें बीच में ब्रेक नहीं लेना है, उसमें 3 आवर्स का ड्यूरेशन आपको लगातार करना है। और जब आप वैसे रेगुलर पढ़ रहे हैं तो 1 आवर का सेशन आप लेके फिर उसके बाद वॉक वगैरह करिए, वाटर या फिर कुछ स्नैक्स ले लिए या उस टाइप का कुछ किया और फिर कंटिन्यू किया। बट जो टेस्ट पेपर है तो उसमें बिना हिले डुले बिना कुछ सोचे वो 3 घंटे लगातार देना है एज इट इज बैठ के। और जब ये वाला ड्यूरेशन है जिसमें आप कोई टेस्ट पेपर नहीं दे रहे हैं, कोई एक सब्जेक्ट कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें you could have breaks in between, short sessions you could have. I had planned tasks for every day, but I'm able to complete only half of it. What should I do? Then you are not planning it in a right manner. So you have to plan. You have to assign yourself tasks which you would be able to complete. ऐसे टास्क अपने ऊपर नहीं लेने जो हम कंप्लीट ही नहीं कर पाए। तो फीजिबिलिटी भी हम लोग को दिमाग में रखनी है कि हाँ वेदर दिस कुड बी डन इन दैट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कि अगले 4 आवर्स में मैं एटलीस्ट एक चैप्टर एक ऑर्गेनिक की एक पूरी रिएक्शन से रिलेटेड उसके जितने टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं वो समझ लूंगा, क्या समझ लूंगी, अगले 2 घंटे में मैं वो चीज कर सकता हूँ। ऐसा अगर प्रिपेयर करेंगे कि नेक्स्ट 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में मैं इसको खत्म कर दूंगा, वो चीज पॉसिबल नहीं। तो गिव योरसेल्फ दैट टाइम if you're that also comes with a lot of discipline. I had planned tasks for every day, but I'm able to complete only half of it. That speaks about your discipline also. You might be spending time on other things as well. तो आपका वो लीजर वाला या फिर स्लीप वाला या ईट वाला या प्ले वाला कोई एक ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ने से रोकना है और स्टडी वाले को बढ़ाना है। और मैं बता रहा हूँ रिपीटेडली, आई एम टेलिंग यू, आप में से ही कुछ लोग सिलेक्टेड होंगे और आप ही में से कुछ लोग रिग्रेट कर रहे होंगे कि मैं उस टाइम से ये चीजें अगर फॉलो कर लेती तो आई कुड हैव डन बेटर। तो इट्स द अपॉर्चुनिटी टाइम। आप स्टार्ट करिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट टेक गिल्ट, ट्राई मोटिवेटिंग योरसेल्फ, थिंक ऑफ द टाइम्स। मैं पता है क्या करता था, मैं सोचता, एक बार ऐसा हुआ था, रोटेशनल मैकेनिक्स ही था, तो रोटेशनल मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन आया। आई वुड नॉट सजेस्ट यू पीपल टू बी डूइंग इट, बट एक क्वेश्चन आया तो वो मुझे लगा कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ। उसमें 2-3 वेरिएबल्स दिए, वेरिएबल लेते लेते फिर मैं 7 वेरिएबल पे पहुंच गया था कि 7 वेरिएबल की इक्वेशन बन गई। तो अब जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन चाहिए। तो और इस क्वेश्चन को मैं 1.5 घंटा दे चुका था और ऐसा हुआ कि 1.5 घंटा दे चुका हूँ। डीपीपी के बाकी क्वेश्चंस भी करने होते थे, एक्सरसाइज भी करनी थी, मैं वो सब छोड़ चुका था कि मुझे आज ये क्वेश्चन बस करना है। तो खैर हुआ, 7-8 वेरिएबल्स हुए, 7-8 इक्वेशंस हुई और इवेंचुअली वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। बहुत सिंपल सी, मतलब डायग्राम वाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि बस एक कॉर्नर ऑफ अ वॉल है, वहां पे एक स्पेयर है, उसके मूवमेंट, उसका एंगुलर मोमेंटम से 8 इक्वेशन बन रही थी। 8 और बहुत सिंपल सा पूछा था कि हाँ इसका ये एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा या कुछ क्वेश्चन था। मैं शायद शेयर भी कर पाऊँ, अगर तो आप लोग से शेयर कर दूंगा। तो वो 8 इक्वेशन, 8 वेरिएबल और 2 से 3 घंटे लगे, वो सॉल्व हो गया। बट मैंने बाकी डीपीपी वगैरह कुछ नहीं किया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई वुड नॉट सजेस्ट यू पीपल टू बी डूइंग। नेक्स्ट डे व्हेन आई रीच्ड क्लास, तो हमारे टीचर थे भरत कुमार मतोरिया। तो ही इज वन ऑफ द फेमस टीचर्स इन फैकल्टीज इन कोटा। बीकेएम सर बुलाते हैं, बीकेएम का उल्टा था एमकेबी, मैकेनिक्स का बाप। तो उनको मैकेनिक्स का बाप बुलाया जाता था वहां पे कि मैकेनिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो ही कुड सॉल्व इट एनीवे। तो अब उनकी क्लास थी और उनसे मैं काफी इंस्पायर्ड था। तो बीकेएम सर ने पूछा, हाँ भाई किसी ने क्वेश्चन किया है? तो
मैंने अपना हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हाँ भाई लोगों ने तो किया ही होगा, मैंने हाथ खड़ा किया। और फिर मैंने देखा पूरी क्लास में, और दिस वाज मतलब जो टॉप टॉप बैच था रेजिडेंस का, उसमें बैठे हम लोग। तो मैंने देखा पूरी क्लास में आई वॉज दी ओनली पर्सन जिसने हाथ खड़ा किया हुआ था। जो वो फीलिंग होती है ना कि आप अकेले पर्सन हो जो एक क्वेश्चन करके आए हो और पूरी क्लास में कोई नहीं कर पाया, इस टाइप की चीजें आप लोग के भी साथ होंगी। दीज थिंग्स वुड हैपन। ट्राई टू रिमेम्बर दीज थिंग्स, दीज विल बी द थिंग्स विच विल मोटिवेट यू। आप अलग हो, ये चीज इमेजिन करो। आपको खुद फील होगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस या कुछ जो सम्स होते हैं या कुछ प्रॉब्लम सिर्फ आप सॉल्व कर सकते हो और कोई नहीं कर पाता उसको। तो वो वाली चीजें आपको बार बार याद आनी चाहिए, और वही आपको हेल्प करेंगी। वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था कि मैं पूरी क्लास में अकेला था जिसने वो क्वेश्चन किया था। सर ने जब पूछा भी तो मैं एक एक चीज मैं सारी क्वेश्चन बता गया सर, मतलब मैंने ये नहीं बताया कि मैंने इस पे 3 घंटे लगाए वो ऑब्वियसली कोई नहीं बताएगा कि हाँ मैंने इतना टाइम दे के लिया। अल्टीमेटली it is not wise. Ideally, if you are spending 3-4 minutes on a question and you are unable to do it, leave that question. You have to move to a new question. But just to prove myself कि हाँ मुझे मैकेनिक्स आ गई है और दिस इज द लास्ट ऑफ इट, जब सब कुछ पढ़ते हुए आ गए, मोमेंटम पढ़ लिया, अपना लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए और वहां तक पहुंचे हैं, और वहां पे एक क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो वो फील होता है कि हाँ मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो बट स्टिल वो एक क्वेश्चन ने मुझे काफी मोटिवेट किया इवेंचुअली कि हाँ इट हेल्प मी इन इन गेटिंग दैट सेंस कि आई कुड डू थिंग्स। तो वो इंसिडेंट्स आप लोग के भी साथ होंगे जब आप पूरी क्लास में लोन पर्सन होगे जिसने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया होगा, और उन इंसिडेंट्स को आप याद रखिएगा कि हाँ वो मैं ही था जब मैंने किया था, और आई आई डिजर्व समथिंग स्पेशल। एक बार और क्वेश्चंस, कभी कभी ऐसा लगता है लाइक बुक्स इन पढ़ाई से दूर रखना चाहते हैं, बट उसे ओवरकम कैसे करें। ये होगा विद टाइम। काफी चीजें ऐसी लगती हैं कि थोड़ा बोर हो रहे हैं उस चीज से। इस केस में ट्राई टू चेंज द टॉपिक्स, ट्राई टू चेंज। जैसे ऐसा होता था मेरे साथ, ये मेजरली इनऑर्गेनिक में होता था, या फिर कोई ऐसी चीज जब मुझे याद करनी होती थी, जहाँ दिमाग लगाना होता था वहां और ज्यादा मजा आता था। क्योंकि जितने भी पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या जितने भी ऐसे सिचुएशंस होती हैं व्हेन यू हैव टू फिगर आउट पैटर्न, then you have to use one formula also, then you have to utilize different concept of from a new topic। तो उसमें तो खूब मजा आता है कि हाँ अब ये 4-5 चीजें लगा के क्वेश्चन खत्म हो गए। बट जहाँ सिचुएशन वैसी होती कि हाँ यू जस्ट हैव टू रीड, you just have to understand and feed in your mind or take notes, वहाँ थोड़ा with time I used to get bored as well। तो उस टाइम पे आप you could stay away from your books, you could focus on something else, you could listen to music, you could walk। but ऐसा नहीं कि for the longer duration you are having such things। तो वो उस टॉपिक को जल्दी या तो क्लोज करके रख दीजिए कि हाँ अब ये टॉपिक मैंने पूरा पढ़ लिया विद फुल अटेंशन। अटेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आप पढ़ रहे हैं और उस चीज पे आपका ध्यान ही नहीं है तो वो टेंजिबल नहीं हो पाएगा, उसका हेल्प आपको नहीं मिल पाएगी। तो फोकस शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स व्हाट यू आर रीडिंग राइट नाउ, व्हाट यू आर स्टडीइंग। दिमाग में क्या चल रहा है कि वो वहां गया, इसने ये किया, उस टीवी सीरीज में ये हो रहा था, या ये क्यों बोल रहे थे, वो सब से कोई मतलब नहीं। अभी कहाँ ध्यान है वो इम्पोर्टेंट है। पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, 3 पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर ध्यान ही नहीं है उधर, तो कोई पॉइंट नहीं है। तो यू हैव टू कीप योर फोकस, योर अटेंशन टुवर्ड्स इट। वो एकदम अर्जुन की जो वो थी ना कि टुवर्ड्स द आई ही वाज टोटली बैलेंस्ड, कि हाँ मुझे वहीं हिट करना है टारगेट। तो वो दैट फोकस शुड बी देयर। तो बुक्स और पढ़ाई से दूर रखने का मन होता है कभी कभी, तो ठीक है, दैट इज फाइन, इट हैपेंस। आपको उस टाइम किसी और चीज में इंटरेस्ट आ सकता है, उस टाइम कोई ऐसी हॉबी अपनी फॉलो करिए और उन चीजों पे फोकस करिए जो विच वुड हेल्प यू ग्रो इन योर करियर, इन योर लाइफ। तो वो चीजें कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक चीज और थी कि इट हैपेंस कि अब मैं ये सब चीजें क्यों करूं, मतलब मुझे ये पढ़ाई
या फिर मुझे ये पूरी आईआईटी की प्रिपरेशन क्यों करनी है। ऐसा दिमाग में आता है कि हाँ, आई कुड फोकस ऑन माय हॉबी और उसी को मैं डेवलप कर सकता हूँ। मैं म्यूजिक सीख के वही चीजें कर सकता हूँ, या फिर मैं कॉमेडी अच्छी कर लेता हूँ तो स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता हूँ, या कोई और चीज पे आपका फोकस हो रहा होगा, मैं इंस्टा इन्फ्लुएंसर बन सकता हूँ। तो वो चीजें भी बहुत लोगों के दिमाग में आती हैं कि एक साइड हॉबी को मैं एज अ करियर चला लेता हूँ, ये पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। तो आप इस तरीके से समझिए कि ये भी करिए और वो भी करिए। ऐसे समझ लीजिए कि बिस्वा कल्याण रथ, ही इज एन आईआईटीएन ऑल्सो एंड ही इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन ऑल्सो। तो अब वो दोनों चीजों के बेनिफिट ले रहा है। तो आईआईटीएन तो मिनिमम बेसिक कर लो ना, कि वो तो मैं रहूंगा ही, उसके साथ मैं एक और चीज कर लूंगा, उसके साथ मैं बेस्ट सिंगर हो जाऊंगा, उसके साथ में बेस्ट म्यूजिशियन हो जाऊंगा, इंडिया का बेस्ट डीजे हो जाऊंगा, है ना। तो अरविंद केजरीवाल है, ही इज फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर बट नाउ ही इज अ पॉलिटिशियन ऑल्सो। तो आईआईटीएन तो वो साथ की चीज हो गई ना। तो एक बेस बनाने के लिए आपको वो रिक्वायर्ड है। तो आप बेस बनाने के लिए इस स्टडीज को अच्छे से कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो ठीक है, उसको बोलते हैं, मतलब वो इंटेलिजेंस के लिए ही जाना जाता है। जितना मतलब इट्स अल्टीमेटली जो आपका एग्जाम है, इट्स अ टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस अक्रॉस इंडिया, कि इस लेवल पे सबसे इंटेलिजेंट बच्चे कौन से इंडिया के। अब उनमें आपको टॉप करना है, उसमें मतलब उसमें तो आपको ऑब्जेक्टिव ये रखना है मुझे फर्स्ट आ। कि यार स्कूल वगैरह के एग्जाम्स तो बच्चे पढ़ पढ़ के और रट के दे देते हैं, लेकिन ये एक एग्जाम है, ये मेरे लिए ही बना है, ये और किसी के लिए नहीं है। इसके लिए मैं बनाऊं, ये मेरे लिए बना है, मैं फर्स्ट आके दिखाऊं। तो वो इंटेलिजेंस वाले एग्जाम में तो आपको यार उसके लिए तो यू कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग ना। तो कीप इन माइंड कि भविष्य अग्रवाल हैं, तो उन्होंने भी अपना मतलब ओला चला रहे हैं, बट बिफोर दैट ही इज एन आईआईटीएन। सुंदर पिचाई गूगल पूरा चला रहे हैं, बट साथ में ही इज एन आईआईटीएन। रघुराम राजन है, तो ही इज द चीफ इकोनॉमिस्ट, he was an RBI governor also, but parallelly he was an IITian also. तो इस चीज को आप बेस बना लीजिए। उसके साथ दूसरी हॉबी करने का भी तो आपको टाइम मिल रहा है ना। विश्व कल्याण रथ ने किया ना, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन बने ना, तो वो सब चीजें तो सेपरेट हैं ही, वो तो आगे मिलेंगी। एक ये बेस बना लेते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, एक्चुअली मैंने ड्रॉप लिया है 12th के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी वही किया था। तो लेकिन मैंने प्रिपरेशन 11th 12th में नहीं करी थी, मतलब जेई की। मैंने भी बिल्कुल नहीं की, मैं छुट्टियां मनाने गया हुआ था। एक तरह से समझ लीजिए, मैं कोटा में छुट्टी मना रहा था उस टाइम पे। वो 13th वाला ही ईयर था। हाँ तो सर, मैंने प्रिपरेशन भी लेट स्टार्ट करी, मतलब सितंबर के अराउंड करी। तो मेरे को टाइम कम लग रहा है, मतलब एग्जाम का ड्यूरेशन का थोड़ा ऐसा रहता है कि कोर्स हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सब जितनी भी नेगेटिव फीलिंग है, जितना नेगेटिव सेंटिमेंट है, ये सब चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने टारगेट डिफाइन कर लीजिए कि हाँ, मुझे रैंक ये चाहिए, इसके बिना मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जब ये क्लियर हो गया कि मैं इस रैंक से नीचे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, अब वो बैक कैलकुलेट करना है। आपके पास 6 मंथ्स हो, मैं कह रहा हूँ 6 to 8 months भी सफिशिएंट है। आपने 11th 12th में नहीं पढ़ाई की, कोई बात नहीं। आपने इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन भी लेट स्टार्ट की, मतलब आईआईटी की प्रिपरेशन भी लेट स्टार्ट की, कोई बात नहीं। लेकिन अभी से लेकर तब तक का जो टाइम है, मैं विद गारंटी बोल सकता हूँ, फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड यू कैन गेट सिलेक्टेड। बट इफ यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड, that is entirely upon you. That should be entirely upon you. Don't feel demotivated even if you not get selected. But अभी भी मैं बता रहा हूँ, इस लेवल से भी in the next 6 to 8 months you could transform your life if you build certain set rules, if you build a timetable for yourself, if you define कि हाँ next 1 month मुझे ये कर लेना है, उसके नेक्स्ट मंथ में मुझे ये 4 टॉपिक्स खत्म कर देने हैं। आपके देखिए तीनों सब्जेक्ट्स में 30 टॉपिक्स हैं लगभग।
जितना जब मेरी अंडरस्टैंडिंग थी तो अराउंड इतना ही था। मतलब कि फिजिक्स में लगभग 30 से 35 टॉपिक्स हैं, सब वो चैप्टर्स हैं। सिमिलरली मैथ्स में है, और केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और ये केमिकल, ये फिजिकल वाला सेपरेट था, तो उसमें शायद थोड़े ज्यादा होंगे। मंथली का आप टारगेट बना लीजिए कि फिजिक्स के मैं 6 कर लूंगा, मैथ्स के मैं 6 टॉपिक्स खत्म कर दूंगा, और उसके केमिस्ट्री के भी 7-8 कर दूंगा। ये मंथ का टारगेट हो गया। मंथ को फर्दर ब्रेक करिए वीक में, कि अब उसके लिए इस वीक में मुझे 3 खत्म करने होंगे फिजिक्स के, या 2 खत्म करने होंगे मैथ्स के। उन 2 को खत्म करने के लिए, खत्म करने का मतलब भी क्या है मेरे लिए वो भी डिफाइन कर लूं, कि मैं उससे रिलेटेड जितना वो टेक्स्ट है वो पढ़ लूंगा, और उससे रिलेटेड जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है एटलीस्ट उसके 5-5 कर लूंगा हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के। या फिर जो मटेरियल, आई होप अखिलेश वुड ऑलरेडी बी प्रोवाइडिंग द बेस्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द कंट्री, वो मुझसे ही यूज्ड टू डिस्कस ऑन वेरियस टॉपिक्स की, हाँ इस चीज से रिलेटेड हम लोग बेस्ट क्वेश्चन कौन कौन से मंगा सकते हैं, स्पेशली से प्रोबेबिलिटी और इस टाइप के जितने टॉपिक्स थे, वी यूज टू डिस्कस दीज ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो मटेरियल में आई एम अश्योरिंग वट एवर अखिलेश इज प्रोवाइडिंग, जस्ट कीप इट एज बाइबल। वो आप अगर पूरा कर लोगे ना तो आपका खत्म है, वो मैथमेटिक्स एटलीस्ट आपका खत्म है। ठीक है, आई एम श्योर ही माइट बी प्रोवाइडिंग फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, बट जितना ही इज प्रोवाइडिंग फॉर ईच ऑफ द चैप्टर, कि हाँ अगर प्रोबेबिलिटी में उसने ये प्रोवाइड कर दिया कि हाँ ये 50 क्वेश्चन कर लो या ये 100 क्वेश्चन कर लो, आपका खत्म हो जाएगा, तो वो प्रोबेबिलिटी आपका खत्म हो गया। फिर बस आपको एक वीक में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन लगा लिए, जस्ट टू कीप इन माइंड कि हाँ इसमें NC2 लगता था, तो फिर साथ में इनटू मल्टीप्लाई होके ये भी लगता था। बाइनोमियल अगर एक्सपेंशन होगा तो वो कैसे होगा, जस्ट टू कीप दोज थिंग्स गोइंग, वो चीज दिमाग में आ जाएगी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, बैक कैलकुलेट करिए, एग्जाम इस दिन है और आज ये तारीख है। अब इस ड्यूरेशन को, इस 6 to 8 मंथ को मुझे कैसे ब्रेक करना है, 6 to 8 मंथ के बाद इमीडिएट 1 मंथ में मुझे क्या करना है। इमीडिएट 1 मंथ का अगर क्लियर हो गया तो उसको वीक वाइज तोड़ लिया, वीक को तोड़ लिया, फिर डे में तोड़ लिया, डे को तोड़ के आर में तोड़ लिया, आर का हमने वो आर वाला हमने आपको दिखाया ही था। तो बस यू हैव टू ब्रेक दैट एंटायर 6 month 7 month long thing into shorter things, and shorter things को further shorter things and further achievable things, and you'll be able to do it. तो इस चीज से रिलेटेड बिल्कुल मत सोचिए कि मैंने लेट स्टार्ट किया है, मैंने 11th-12th में कुछ नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा था, मैंने 11th-12th ऑलमोस्ट ब्लैंक रहा है, कुछ नहीं आता था। लेकिन वो 13th वाला जो ईयर था ना, वो मुझसे ज्यादा शायद कोई नहीं पढ़ा उस टाइम पे। मैं ऐसा क्लेम कर सकता। उस टाइम मैंने कोई मूवी नहीं देखी है, जो भी चीजें रिलीज होती थी मेरे फ्रेंड्स आके बताते हैं, अभी ये मूवी देखने जा रहे हैं, मैंने कहा देख के आओ, बताना कैसी थी। तो उस पूरे ड्यूरेशन मेरे पास फोन नहीं था, मैंने मूवी नहीं देखी थी, वो 1 साल दिया था मैंने। तो वो और पूरी पढ़ाई मेरी बचपन से लेकर अभी तक मैंने वो 1 साल ही पढ़ी है। उसके अलावा पहले का जितना रहा हो, मैं क्लास 2nd में फर्स्ट आया था, उसके बाद कभी फर्स्ट भी नहीं आया। तो 3rd 4th 5th में तो रेगुलर जैसी रैंक आती थी। इनफैक्ट 9th जो कि एक इजी क्लास होता है, उसमें भी मेरी 80% से कम मार्क्स थे। 10th में फिर भी 81 आ गए थे, विच इज अगेन वेरी लो व्हेन इट कम्स टू CBSE। तो आप ये सोचो, मैंने थ्रू आउट जितना वो किया था, फर्स्ट से लेकर 12th तक कोई पढ़ाई मैंने फोकस नहीं किया था, बट ये था कि शायद दिमाग थोड़ा तेज है। तो उस चीज को यूटिलाइज किया वो 13th वाले ईयर में, कि बस 1 साल पढ़ते हैं। और ये घर वालों का या इन सब का जितना कहना था कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, वो सारी चीजें एक बार में नेगेट हो गई कि भाई ये तो IIT क्वालिफाइड। तो यू कुड ऑल्सो अचीव दैट। हाउ कुड यू अचीव दैट? बाय बीइंग डिसिप्लिन। जो मैं वो चीज कह रहा हूँ ना, कि यहाँ से भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो वो आपकी गलती है। वो आपकी गलती तब होगी अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। जहां पे भी आपका डिसिप्लिन टूट रहा होगा, वहां आपको खुद दिमाग में आ जाना चाहिए कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ, आई शुड फोकस ऑन माई स्टडीज, आई नीड टू मेंड माई वेज, आई नीड टू कोर्स करेक्ट। इतने ही चैप्टर हुए हैं, अभी इतने और करने हैं।
टिक मार्क लगाते जाओ, एक पेपर पे सारे लिख लो कि हाँ इतने इनऑर्गेनिक के हैं, इतने ऑर्गेनिक के हैं, इतने फिजिकल के हैं, इतने फिजिक्स के और मैथ्स के हैं। मैथ्स में भी फर्दर डिवाइड कर दिया। जो जो चैप्टर खत्म होता जा रहा है उसको टिक करते जाओ, सामने सामने दिखेगा ना कि हाँ ये मेरा खत्म हो गया, अभी सिर्फ 30% रह गया। अपने आप वो सेटिस्फैक्शन आएगा कि भाई बस जरा सा रह गया, अब मैं कल ले जाऊंगा। साथ के साथ पेपर्स संडे टू संडे, हर संडे को तो आप लोग फिक्स कर लो कि वो जो एग्जाम टाइमिंग्स है मैं एज इट इज एग्जाम ही दिया करूंगा बैठ के, उसमें कुछ और मैं करूंगा ही नहीं। और वीकडेज आपका रेगुलर है, वीकडेज पे तो आपकी जो क्लासेस चल रही होंगी, आपका वो एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट 3 डेज में मुझे एक ये सब। अब और इस पूरी चीज को, इस पूरे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बार ट्राई करिए। फर्स्ट वीक आप अपना टाइम टेबल बनाइए और उसके बाद समझिए कि हाँ इसमें अब मुझे क्या क्या चेंजेस लाने हैं जो जेन्युइनली मुझे हेल्प करेंगे। एक वीक का टाइम टेबल बनाइए, उसको सोचिए कि मैंने इसको ये चीजें ऐसे ऐसे असाइन की। अब फिर वो 1 वीक जब पूरी हो जाए तो गिव योरसेल्फ अ रेटिंग कि हाँ मैंने इस चीज में मैंने टाइम टेबल बनाने में गलती की थी इसलिए प्रॉब्लम हुई, और यहाँ मेरी खुद की गलती थी कि मैं इसलिए नहीं कर पाया। फिर रीइवैल्यूएट हाउ यू हैव टू मेक योर टाइम टेबल एंड वर्क ऑन इट। जितना ज्यादा आप अपने काम में और अपने इसमें स्टडीज में डिसिप्लिन लाओगे ना, उतना ज्यादा इट वुड इम्पैक्ट, उतना ज्यादा इट वुड हेल्प यू। तो like I said, to sum it up, 6 months is sufficient enough time for any IITian to come out of you. अब वो उस IITian को आपको कैद करके रखना है, नहीं निकलने देना है, तो वो आपकी अपनी प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो IITian होगा तो वो बाहर आ जाएगा, वो निकल आता है, उसको कोई नहीं रोक पाता है। अब ये हर्षित यू मेंशनिंग सर पढ़ा तो था लेकिन जेई के हिसाब से 11-12 में नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं। काफी स्टूडेंट्स होते हैं who start in this time और वो कुछ मैटर नहीं करता। जेई के हिसाब से नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा, ठीक है वो हो गया। अब आगे क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। आगे दिमाग है, अब वो पता है कि हाँ भाई दिमाग तो है, और दिमाग दिखाना भी है लोगों को। तो अगर तुम्हें दिमाग अपना दिखाना है लोगों को, दिखाओ ना। दिखाने का तरीका इंडिया में यही है, आईआईटी क्वालिफाई करो, सिंपल। लोगों को दिमाग जताने का तरीका यही है। अच्छा, एक इंसिडेंट जैसे वो वाला मैंने बताया था, आईआईटी में हुआ एक बार ये कि एक टीचर थे हम लोग के, वो कोई तो एक मतलब किसी और डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने एग्जाम दिया। तो वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के थे या किसी डिपार्टमेंट के थे, तो उन्होंने एग्जाम लिया। मतलब उनका एग्जाम होने वाला था। तो हम लोग को नया नया चस्का चढ़ा था, हम लोग जो फर्स्ट ईयर में ही थे। तो फर्स्ट ईयर से हम लोग ने सोचा कि इसका ओपन बुक कर दीजिए, ओपन बुक कर दीजिए। तो सबने कहा कि हाँ ये चीज चलाते हैं, ओपन बुक करवाते हैं, ओपन बुक करवाते हैं। अब ओपन बुक में ये हो जाता है कि आपके सामने एग्जाम पेपर है, आप अपनी बुक लेके वहीं पे बैठ सकते हैं। तो डिफरेंट लेवल्स होते हैं। एक ये होता है कि एक चीट शीट अलाउड है। तो एक चीट शीट में ये होता है कि एक पेपर पे आप सारे फॉर्मूले छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिख लो, और उसका भी हम लोग फोटो कॉपी कराते थे। तो एक पेपर पे आगे पीछे आप सारे फॉर्मूले छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिख लो, उसको लेके आप बैठ सकते हो ड्यूरिंग द एग्जाम। दिस इज चीट शीट अलाउड। देन नेक्स्ट लेवल इज ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम में कि जो उस कोर्स की बुक है वो आप लेके बैठ जाओ और साथ में एग्जाम करो, ढूंढ लो कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे है, इसके यहाँ फॉर्मूले देखता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो विच इज गुड ऑल्सो टू प्रमोट कि हाँ रटना नहीं पड़ रहा है, आप एप्लीकेशन जो है वो तुरंत अप्लाई कर रहे हो, इधर पढ़ रहे हो, इधर समझ के कर दे। तो हम लोग उस टीचर से कहने लगे कि ओपन बुक ओपन बुक ओपन बुक कर दीजिए सर। तो उनका मतलब उनके बारे में काफी सुना था हम लोग ने कि ये बहुत अलग टाइप के टीचर हैं और बच के रहना है इनसे। तो हम लोग ने कहा ठीक है, इनसे बचने के लिए तो हम लोग अपना प्रिपेयर कर रहे थे कि हाँ भाई ओपन बुक कर दीजिए सर, तो हम लोग के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने एक बार देखा बस ऊपर, और फिर कुछ बोले नहीं।
बस एक बार देखा। बच्चे फिर बोलते गए सर ओपन बुक, और कल ही था शायद एग्जाम, या कल ही क्विज था, या कुछ ऐसा था। तो उन्होंने ऊपर देखा, बोले ओपन बुक नहीं, दिस वुड बी एन ओपन एवरीथिंग एग्जाम। तो पहले बच्चों को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ ये, अभी सडनली ओपन बुक हम चाह रहे थे, हमें उससे भी ज्यादा मिल गया है, कुछ जो हम मांग रहे थे उससे भी ज्यादा का कुछ दे गए। तो ओपन एवरीथिंग का मतलब था कि आप अपना लैपटॉप लेके आ जाइए एग्जाम में, और लैपटॉप लेके भी उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर पाए, वो 10 से 20 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे आपको, तो सॉल्व कर दीजिए। तो ही गेव अस अ चैलेंज कि आपको बुक तो ठीक है, बुक तो आप वहां खोलिए ही, आप लैपटॉप ले आइए, इंटरनेट पे आप क्वेश्चन अपना डाल के भी पूछ लीजिए, और तब भी आपका सॉल्व हो जाए तो आप कर दीजिए। तो इस तरीके के कुछ कुछ प्रोफेसर थे, which is relatively very rare when it comes to an engineering institute। आप लोग को रिलेटिवली थोड़ा अजीब सा फील होगा when you would enter IIT, say if anyone of you happens to be in IIT, because जिस तरीके की पढ़ाई अभी आप कर ले रहे हो ना, इससे रिलेटिवली थोड़ा बहुत कुछ काफी केसेस में डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि इतना रेगुलर नहीं होता है, उतना इंटरेक्शन उतना प्रॉपर नहीं होता है विद द टीचर्स। जैसे यहाँ काफी प्रोमिनेंटली यू वुड बी कमिंग टू नो अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट, तो वहां खुद से ही वो सारी चीजें पढ़नी होती हैं, या सीनियर से या साथ के बैचमेट से, जैसे अखिलेश हम लोग को पढ़ाता था। तो सिमिलरली इट वाज द केस ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम्स कि वी यूज्ड टू लर्न फ्रॉम मार्शल्स, बट देयर वर सम प्रॉफ्स ऐसे 3-4 आईआईटी में होते हैं जो फिर वो उनके ही नाम पे फिर जानी जाती है आईआईटी। डीबी फाटक वाज वन, जिनको हु वाज अमंग्स द टॉप 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन इंडिया। तो सिमिलरली इस टाइप की पर्सनालिटी से आप पढ़ रहे होते हो, तो जरूरी नहीं है कि व्हाट यू आर आस्किंग फॉर इज राइट फॉर यू। तो ओपन बुक और ये सब सही नहीं रहेगा, वो कभी कभी ओपन एवरीथिंग वाले एग्जाम जब आ जाते हैं तो सब खत्म हो जाता है फिर। आईआईटी दिल्ली में जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है उसमें भी एंड सेम जो है वो ओपन बुक एंड ओपन जो है घर ओपन जाके एवरीथिंग। ओपन घर जाओ आप पेपर ले जाओ, आप एक दिन बाद सबमिट करना। वैसा हो जाता है। अगेन जैसा जैसा ऑप्शन देंगे वैसे वैसे डिफिकल्टी भी वो बढ़ाते हैं, तो वो अगेन गिव एंड टेक टाइप है, कुछ दे रहे हैं तो कुछ ले भी लेते हैं। तो अगेन किसी और के कुछ डाउट है, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो रहा है, मेरे ख्याल से अनंत की इसके जस्ट बाद में और है, सो अनंत जो है वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो अगेन अभी और की कोई लास्ट अगर कोई डाउट पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, बाकी सेमिनार मेरे ख्याल से काफी लंबा हो चुका है तो अपन एंड भी कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सबने पूछ लिया। सो अभी बेसिकली अपन सेशन एंड करते हैं। होपफुली नेक्स्ट टाइम अनंत जो है आएगा और कोई अच्छा टॉपिक जो है उससे रिलेटेड अपन डिस्कशन करें। सो ओके, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप डिस्कनेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।